know why you need a king? You need a king to fight your battles. Because you cannot fight your own battles. And there is no other king who can fight your battles except our Lord and Savior, Jesus Christ. I'll put two stories before you. मैं आपके सामने दो कहानियों को रखूंगा. And I'll explain you why we are not victorious. अब तक करिए अपने लिए कि जब आपके कटनी का समय हो, शत्रु का कोई भी हथियार आपके विरोध में सफल ना हो. You are a mighty warrior in God's eyes. You are no ordinary person. The devil has always been saying you are ordinary. But the word of the Lord says when it came to Gideon, जब गिडियन के पास परमेश्वर का वचन आया, उसने ये नहीं कहा कमजोर व्यक्ति, उसने कहा हे शूरवीर योद्धा. क्या आप जानते हैं इस बात को अपने लाइफ में कि आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बहुत सामर्थ के साथ, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के साथ आपके जीवन में विक्ट्री दिलाने वाला परमेश्वर है. इमेजिन आपकी सेना यहाँ खड़ी है और पत्ते हिल रहे हैं. What is happening? The army of God is moving. और जब तुम इस आवाज को सुनो, तब तुम समझ जाना तुम्हारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे जाके तुम्हारे लिए लड़ रहा है. तुम्हारे पीछे नहीं, पहले वो आगे जाएगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा. Today you have been celebrating Christmas and you have been saying, welcome to the newborn King. And today's talk or today's devotion is about King. Okay, let me ask you, why do you need a king? Okay, if I ask anybody, why do you need a king? Anybody would like to answer? To lead us. Okay. Okay, can you answer me, why did the Israelites ask for a king? You know, Israelites asked Samuel to give them a king. How many of you know this? Why did they ask the Israelites to give them a king? Yes? Another thing? Okay. Anything else? Anyone would like to add? Who is going to read the scriptures? Can somebody read 1 Samuel chapter 8 verse 20? Then we will be like all the other nations. Then we will be like all the other nations. Yes. With a king to lead us and to go out before us and fight our battles. A king before us to fight our battles. You know why you need a king? You need a king to fight your battles. Because you cannot fight your own battles. And the Israelites asked, इज़राइलियों ने शमूएल से कहा कि हमें एक राजा दे. क्यों? दो कारण. पहला, दूसरे लोगों की तरह बनना चाहते. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा राजा हूं. उन्होंने कहा नहीं, हमें दूसरों के जैसा चाहिए. Sometimes we also need a king, but we want a duplicate king who suits our needs. But God was already their king. God said, I am their king. They have not rejected you, they have rejected me. And still they asked, why? They wanted somebody who would lead them in their battle. I want to tell you, dear students, you also need a king. आपको भी एक राजा की जरूरत है जो आपकी लड़ाई लड़ सके. Can you fight your own battles? क्या आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं? Can I fight my own battles? No, I cannot fight my own battles. मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता. मुझे एक राजा चाहिए जो मेरी लड़ाइयों को लड़ सके. And I want to say to you also that you also need a king. And there is no other king who can fight your battles except our Lord and Savior, Jesus Christ. He alone can give you victory in every situation of your life, whatever be the situation of your life. Okay? Can anybody say, if Jesus is my king, then I will lose? Can you think, if Jesus is your king, can you lose? Can you lose a battle? Can you lose in any situation? Okay, if somebody can read Isaiah chapter 14, verse 27. For the Lord Almighty has purposed, and who can thwart him? His hand is stretched out, and who can turn it back? If the Lord has planned, who can stop him? I want to say, if God has decided to fight for you, who can stop him?
If God has come to your aid and he says, I am going to fight your battles, can anybody stop God from working in your life? God says, I am here. If I have planned to bless you, who can stop me? If I have planned to make you a success, who can stop me? And today, God is saying the same to you. If I am your king and if I decide to bless you and if I decide to fight for you, who can stop me? Nobody can stop you from winning. We are more than conquerors through Jesus Christ. That is what Paul says. We are born victorious. We start from victory. We don't work from victory. We start from victory. हम विजय के लिए नहीं लड़ते, हम विजय से लड़ते हैं. We start from victory. Why? Because we have a king and he's a king who is a victorious king. He is victory and when he is with us, जब वो हमारे साथ है तो हम विजय से शुरू करते हैं. And therefore my dear students, मैं आपको encourage करना चाहता हूं, आपको भी एक राजा की जरूरत है. लेकिन हम सोचते हैं अगर राजा हमारे साथ है तो हम विजय क्यों नहीं पाते हैं? If there is a king, why do we lose? हम क्यों हारते हैं? I'll put two stories before you. मैं आपके सामने दो कहानियों को रखूंगा and I'll explain you why we are not victorious. हम क्यों अपने राजा को अपने हुए लड़ता हुआ नहीं देखते? Let us look to the book of Judges chapter 6 where there is a story about Gideon. हम न्यायों उसका छठा अध्याय पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसमें गिडियन की स्टोरी को पढ़ते हैं. और गिडियन के बारे में लिखा हैगा कि वो एक बार क्या कर रहा था, वो अपनी फसल को काट रहा था. निधि, कैन यू रीड जजेस चैप्टर 6 verse 3 and 4? Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. They camped on the land and ruined the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel, neither sheep nor cattle nor donkeys. Okay, thank you. Listen very carefully. Please, ध्यान से सुनिए what I am about to say. Every year, the Israelites planted their crops. And when the harvest time came, what happened? The enemy came and it destroyed the crop. हर साल इजरायली लोग फसल को डालते थे और जब फसल के कटनी का समय आता था तो शत्रु आके क्या करता था? उनकी फसल को तबाह कर देता था. I want to tell you, you have been struggling, you have been working hard, you have been working for something to get success, but जैसे ही सक्सेस का टाइम आता, कटनी का समय आता है, क्या देखते हैं आप? शत्रु आया और उसने आपकी फसल को नाश कर दिया. You may be thinking, मैं साल भर बहुत मेहनत से पढ़ा, मैंने साल भर बहुत पढ़ाई करी, लेकिन जैसे ही पढ़ाई का समय आया, घर में कोई प्रॉब्लम, and your mind is upset, and you struggle in your exams. या कोई घर में प्रॉब्लम आई, कोई सिकनेस आ गई, आप साल भर मेहनत कर रहे थे, इंटरव्यू देने जा रहे थे, सडनली अ सिकनेस, और क्या हुआ? यू लूज योर जॉब, यू कैन नॉट परफॉर्म वेल. या मोस्ट कॉमनली एग्जाम से पहले गर्लफ्रेंड का फोन आता है, या कहती है ब्रेकअप, पूरा रात वहीं खत्म, एग्जाम क्या देंगे फिर? Why? Because the enemy wants to destroy your crop. आपकी मेहनत को वो नाश करना चाहता है. उसका वो पूरे टाइम नहीं आएगा. He just wait for the right time. जब फसल पक जाएगी, when it's the right time, तब शत्रु आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करेगा. You are working for the whole year. When the time comes for you to perform, right there he will strike you. Dear students, प्रार्थना करिए अपने लिए कि जब आपके कटनी का समय हो, शत्रु का कोई भी हथियार आपके विरोध में सफल ना हो. परमेश्वर ने यशाया 54:17 में कहा, कोई भी हथियार जो तेरे विरोध में बनाया जाएगा उनमें से एक भी सफल नहीं होगा. इस वचन को अपने जीवन में एवरीडे डिक्लेयर करिए that Lord, I am preparing for my examination, I am preparing for an interview in the name of Jesus Christ according to your promise. Isaiah 54:17.
नो वेपन ऑफ डार्कनेस विल प्रिवेल ओवर मी। इसको डिक्लेयर करिए कि शत्रु का कोई भी हथियार आपके विरोध में सफल ना हो। क्यों? क्योंकि ही इज वेटिंग टू स्ट्राइक यू एट द राइट टाइम। व्हाई? बिकॉज हम अनअवेयर हैं। वी आर अनअवेयर दैट द एनिमी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्ट्राइक। वी नीड टू बी अवेयर। हमें जागरूक होने की जरूरत है कि हम जान सके हमारा शत्रु कब हमें हिट करता है। एंड व्हाट डिड द एंजल सेड टू गिडियन? In verse 12, what did the angel said to Gideon? When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Yes. What did the angel say? The Lord is with you, mighty warrior. हिंदी में लिखा है, यहोवा तेरे साथ है, शूरवीर सोरमा। अगर आपसे परमेश्वर का दूत आज बोले, you are a mighty warrior, will you believe? Will you believe? You will say, pata nahi, maybe. But I want to say to you, you are a mighty warrior in God's eyes. You are no ordinary person. The devil has always been saying you are ordinary. But the word of the Lord says, when it came to Gideon, जब गिडियन के पास परमेश्वर का वचन आया, उसने ये नहीं कहा कमजोर व्यक्ति, उसने कहा हे शूरवीर योद्धा। You are a mighty warrior in God's eye. He wants to use you mightily. वो आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? शैतान जो बोलता है ना, तुम कुछ नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस। नहीं, आप यूजलेस नहीं है, आप परमेश्वर की दृष्टि में माइटी वॉरियर है। ओके, और वो क्या कहता हैगा कि यहोवा तेरे साथ है। और आपको पता शैतान क्या कहेगा? परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। शैतान आपको झूठ बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर जब गिडियन के पास आया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द पास्ट, जो भी गड़बड़ियां थी, लीविंग असाइड एवरीथिंग, परमेश्वर का दूत आगे कहता है यहोवा तेरे साथ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा आपके साथ है, आप एक माइटी वॉरियर है उसके लिए। तो गिडियन कहता है अगर परमेश्वर मेरे साथ था, अगर हमारे साथ था, तो ये सारी विपत्तियां हमारे ऊपर क्यों आई? और उसका जवाब एंजल ने क्या दिया? वर्स 14। Verse 14. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand." Okay, that's it. क्या बोला स्वर्गदूत ने? अपनी इसी शक्ति में जा। कौन सी शक्ति? उसके पास तो कोई शक्ति ही नहीं थी। लेकिन आप उससे पहले 13, 14 और 15 को पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे, वो कहता है, "But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all the wonders?" कहाँ है वो सारे आश्चर्य के काम that the ancestors told us about when they said, "Did not Lord bring us out of Egypt?" वो कहता है कहाँ है वो सारे? यानी वो जानता था कि उसका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र से बड़े सामर्थ के साथ, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के साथ लेकर आया। उसको क्या ज्ञान था उन सारे चिन्ह और चमत्कार का? आई वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? इज ही सम स्मॉल, इररेलेवेंट और अनपावरफुल स्मॉल गॉड, और इज ही अ माइटी गॉड हु मूव्स हेवन एंड अर्थ? वो एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने की सामर्थ्य रखता है। एंड यू नो उसकी सामर्थ्य क्या थी? जब एंजल ने कहा मूव इन योर स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य यह थी कि वो अपने परमेश्वर को जानता था। वो जानता था कि उसका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इजरायलियों को मिस्र से बड़े सामर्थ्य के साथ, चिन्ह और चमत्कार के साथ निकाल के लाया। क्या आप जानते हैं इस बात को अपने लाइफ में कि आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बहुत सामर्थ्य के साथ, अद्भुत चिन्ह चमत्कार के साथ आपके जीवन में विक्ट्री दिलाने वाला परमेश्वर है? और डू यू थिंक कि नहीं, मे बी शायद हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि शैतान ने हमेशा हमारे कानों में झूठ बोला है कि तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, तुम कभी विजय नहीं हो पाओगे, तुम कभी सक्सेस को नहीं देख पाओगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को जानिए। गिडियन को कोई नॉलेज नहीं थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, कोई ताकत नहीं था, कोई बल नहीं था, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता था। और एंजल ने कहा इसी स्ट्रेंथ में जा, इसी बल से जा कि तू अपने परमेश्वर को जानता है। नो योर गॉड,
and know the power of your God. When you will know the power of your God, nothing will be impossible for you. Because you will put your faith in your God, not on your situations or circumstances. आप अपनी परिस्थितियों पर, अपनी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करेंगे. आपको मालूम है, जब मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने देखा इजराइट्स कभी नहीं हारे हैं, लेकिन कभी नहीं हारे until and unless they were unfaithful to the Lord. Whenever they were faithful, they never lost a battle. आप पढ़ लीजिए बाइबल और दिखाइए एक जगह कहाँ इस्राएली हारे, जब तक उन्होंने खुद परमेश्वर के प्रति अनफेथफुलनेस को नहीं दिखाया. Whenever they were unfaithful, they lost. But whenever they were faithful, they never lost. Whenever you are faithful to your God, you will never lose. Because this is what my Bible says. ये मेरी बाइबल मुझे बताती है. यदि आप अपने परमेश्वर के प्रति फेथफुल हैं, आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हार का परमेश्वर नहीं है, वो विजय का परमेश्वर है. हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर के प्रति फेथफुल नहीं. बाइबल में कहीं नहीं लिखा, पढ़ लीजिए जितनी बार पढ़ना चाहे. इफ यू वांट विक्ट्री, बी फेथफुल. आपको मालूम है कैसे जीतते थे इजराइल? जब मैं पढ़ता हूं, आई एम रियली थ्रिल्ड. Joshua 23:10. One of you routs 100 or 1,000. That's it. बस यहोशू इजराइलियों को याद दिला रहा है. Joshua is reminding Israelites, remember those days when one killed 1,000. एक ने कितनों को मारा? 1,000 को. क्या आप सोच सकते हैं एक 1,000 को मार सकता है? क्या बाइबल में झूठ लिखा है कि एक ने 1,000 को मारा? क्या बाइबल झूठी है? जी नहीं. एक ने 1,000 को मारा. आप जजेस पढ़िए, आपको मिल जाएगा. सैमसन ने कितनों को मारा? आप डेविड के माइटी 30 वॉरियर्स को पढ़िए, आप देखिए कितनों को मारा. कैसे मारा? नॉट बाय माय स्पिरिट, नॉट बाय दिस माइट और एनीथिंग, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन्होंने मारा. जब इजिप्शियंस इजराइट्स को पीछा कर रहे थे रेड सी में, वहां लिखा है परमेश्वर ने उनके चक्कों को जाम कर दिया. यू नो हाउ गॉड वाज फाइटिंग फॉर देम? उनके चक्के ही जाम कर दिए. लो लड़ो. तलवार निकाले, तलवार ही नहीं निकल रही, जाम हो गई. तीर निकाल रहे, तीर फंस ही नहीं रहे निशान लगाने के लिए. ऐसे लड़ेगा आपका परमेश्वर. आपका शत्रु सोचता रह जाएगा, उतनी देर में परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा. ही विल फेल एवरी वेपन दैट द एनिमी विल प्लान फॉर यू. इसीलिए परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से कहा, जकरिया 4:6 में निकालने की जरूरत नहीं है, नॉट बाय माइट, नॉट बाय योर स्ट्रेंथ, बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड. एक और वर्स हम पढ़ेंगे, 2 Samuel 5:24. 2 Samuel 5:24. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the poplar trees, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army. Okay, thank you. Imagine करिए, beautiful scene. परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, जब तुम पॉपुलर ट्री के ऊपर पत्तियों की आवाज सुनो, तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे आगे आगे बढ़ रहा हूं. इमेजिन आपकी सेना यहां खड़ी है और पत्ते हिल रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग? द आर्मी ऑफ गॉड इज मूविंग. और जब तुम इस आवाज को सुनो, तब तुम समझ जाना तुम्हारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे जाके तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे पीछे नहीं. पहले वो आगे जाएगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा. He will go ahead of you. Imagine अगर परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर आ जाए और you know that the presence of God is here, और आगे शत्रु खड़ा है, आप क्या करोगे? मुझे आपका नहीं पता, मैं कहूँ चलो लड़ने चले. Because why? My God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. अब मुझे कौन हरा सकता है? Who can defeat me? Do you want Jesus to be your king? Do you want him to fight your battles? But एक condition है. A king rules over his people. एक राजा अपनी प्रजा के ऊपर राज करता है. क्या आप उसको अपने जीवन में राज करने देंगे?
अगर आप राज करने नहीं देंगे तो वो राजा कहां का रहा भाई? इफ यू डोंट अलाउ हिम टू रूल इन योर लाइफ, हाउ कैन ही बी योर किंग? वो आपका राजा तभी हो सकता है जब आप उसको अपने जीवन में रूल करने दें। क्यों हम नहीं जीतते? क्यों विजय हमारे नहीं होती है? क्योंकि हम उसे अपने जीवन में रूल नहीं करने देते। एंड दैट इज व्हाई वी लूज। लेट हिम रूल इन योर हार्ट्स, इन योर माइंड, इन योर स्पिरिट, एंड यू विल बी विक्टोरियस हमेशा। एक और स्टोरी को हम सुनेंगे, दैट इज फाउंड इन 2 Chronicles chapter 14. दिस इज अबाउट किंग आसा। आसा राजा के बारे में है। ओके, सो क्या होता है, एक बार एक बड़ी सेना सामने आती है। आसा चैप्टर 2 Chronicles, दूसरा इतिहास 14, 8 और 9। 2 Chronicles chapter 14 verses 8 and 9. Asa had an army of 300,000 men from Judah, equipped with large shields and with spears, and 280,000 from Benjamin, armed with small shields and with bows. All these were brave fighting men. ओके, थैंक यू। अगर आप एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे, इजराइल के पास कितने थे? 5,80,000 आर्मी मैन, और जो एनिमी की संख्या उसमें लिखा है थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स। आई वुड से एन इन्फिनाइट नंबर। एक विशाल सेना इजराइल से लड़ने आई और इजराइल के पास न्यूमेरिकल एडवांटेज नहीं था, वो बहुत थोड़े थे इन कंपेयर टू द इन्फिनाइट सोल्जर्स दैट हैड कम टू फाइट अगेंस्ट देम। लेकिन क्या हुआ, आसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने क्या करा? विक्ट्री दी। गॉड गेव विक्ट्री टू किंग आसा, राइट, विथ 5,80,000 अगेंस्ट एन इनफाइनाइट आर्मी। वो विक्टोरियस हुए। फिर क्या हुआ? समथिंग हैपेंड। एक बार फिर लड़ाई हुई, लेकिन इस बार इजराइल हार गया। क्यों हार गया? देखिए, चैप्टर 16 वर्स 2 and 3, 2 Chronicles, दूसरा इतिहास, chapter 16 verse 2 and 3. Asa then took the silver and gold out of the treasuries of the Lord's temple and of his own palace and sent it to Ben-Hadad, king of Aram, who was ruling in Damascus. Let there be a treaty between me बस that's and it. you. Thank you निधि। क्या करा? आसा ने जितने भी सोना चांदी था उसको ले किसको दे दिया? किंग ऑफ आराम को। और क्या करा उसके साथ? He sought an alliance, इंग्लिश में भी लिखा है, he sought an alliance with the king of Aram, and this displeased the Lord. परमेश्वर को ये बिल्कुल नापसंद हुआ। If you will read Isaiah chapter 30 verse 1 and 2, I'll read this for you. Isaiah chapter 30 verse 1 and 2. Woe to you, woe to the obstinate children, declares the Lord, to those who carry out plans that are not mine. परमेश्वर कहता है तुम वो प्लान्स को कैरी करते हो जो मेरे नहीं है। Forming an alliance not by my spirit, heaping sin upon sin. Who go down to Egypt without consulting me, who look for help to Pharaoh's protection, to Egypt's shade for refuge. यहाँ पे परमेश्वर इजरायलियों को कंडेम कर रहा है, डांट रहा है कि तुमने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन तुमने क्या करा? एक परदेसी राजा के पास गए और उससे मदद मांगी। कई बार हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से कंसल्ट नहीं करते हैं और अपने लिए हेल्पिंग हैंड ढूंढने लग जाते हैं। एंड दिस प्लीजेस द लॉर्ड। ये परमेश्वर को बहुत दुख देता है जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और पर भरोसा करते हैं। When we form wrong alliances, जब हम गलत alliances को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर को दुखी करते हैं, because he is a God who wants to be our king. And Asa was rebuked. अगर आप 16 का 7 और 8 पढ़ेंगे निधि। Yes. Chapter 16, 7 and 8. Yes. At that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of the king of Aram has escaped from your hand. Yes. परमेश्वर ने एक प्रॉफिट को भेजा और रिब्यूक करा। किसको? आसा को। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा? परमेश्वर पर। इससे पहले एक लड़ाई है, देयर इज अ बैटल बिफोर
where 5,80,000 versus an infinite soldiers, they won. But now a small army is coming, but still he does not consult the Lord, but he seeks an alliance. वो क्या करता है? एक अलायंस एक ऐसे व्यक्ति से जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है बांधता है, और परमेश्वर उससे नफरत करता है. आप अपने विजय के लिए किसके ऊपर भरोसा करते हैं? You know, in Isaiah chapter 42 verse it says, I will not give my glory to another. मैं अपनी महिमा किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा. God says, I will not share. If you will seek alliances, you will seek helping hands. परमेश्वर ठीक है, अपने तरीके से कर ले, मैं तेरे लिए नहीं करने वाला. Because God is there, He says, I will not share my glory. I will not share my glory with anyone. You give me all glory and I will fight for you. कई बार हम क्या करते हैं? हम अपने लिए हेल्पिंग हैंड ढूंढ लेते हैं. जॉब मिलना है, ब्राइबरी, किसी को पकड़ेंगे, पैसा खिला के हो जाए, या कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंस को यूज करेंगे. हम क्या कर रहे हैं? अपनी समझ से अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. If you will fight your own battles according to your own mind, without consulting God, without depending upon Him, He will not fight for you. वो आपके लिए नहीं लड़ेगा. Because He does not like alliances. उसको छोड़. We have only one alliance, and that is our King, Jesus Christ. If we seek any other alliance, it displeases Him. वो उसको दुखी करता है. वो कहता है नहीं, मैं अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा. उसी के आगे वर्स 9 में लिखा है, For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर मंडराती हैं कि वो उनको दृढ़ करे, मजबूत करे, जिनके हृदय उसकी प्रति फुली कमिटेड है. हाफ कमिटेड नहीं, fully committed. Are you fully committed to your God? Many times we say we are committed, but we are not. हाँ परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि भी है ना, इस तरीके से भी कर लेना चाहिए. That is not full commitment. फिर आप अपनी बुद्धि पे भरोसा कर रहे हैं. गिडियन जब लड़ने गया, कितनों को लेके गया था? Anybody knows? 300. क्यों? परमेश्वर ने कहा कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि अपने बल से तुम जीत गए. ओके. और कौन चुने गए? ध्यान से सुनिए, कौन चुने गए? जो कैसे पानी पीते थे? कुत्ते की तरह चाट चाट के. मैं कहूंगा जिनको पानी पीने की भी तमीज नहीं थी, वो चुने गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई. गिडियन शोड ओबीडियंस. परमेश्वर ने कहा जो कुत्ते की तरह चाटेंगे वही लड़ने जाएंगे. वो कहता परमेश्वर इनको तो पानी पीने की भी तमीज नहीं, आप इनसे कह रहे हो लड़ने जाओ. बट ही ओबेड. समटाइम्स योर माइंड कैन टेल यू दिस डजंट साउंड गुड, ऐसे हम नहीं जीत सकते. इमेजिन गिडियन कह सकता था ना कि लॉर्ड इनको तो पानी पीना भी नहीं आता, इनसे मैं लड़ूंगा. बट ही सेड व्हाटएवर यू से आई विल डू. Sometimes in our intellectual mind we may think, अरे नहीं हो सकता प्रभु, संभव नहीं है, दूसरा तरीका ट्राई करना चाहिए. But God says no. I want someone who is fully committed to me. I can. परमेश्वर कहता है कि मैं पत्थरों से भी अपने लिए एक सेना को तैयार कर सकता हूँ. I can raise up an army from dry bones. Ezekiel. But he's looking for people who are fully committed to him. जिनका हृदय जो परमेश्वर कहेगा वो उसको बिना आर्ग्यू करे. You know, intellectual mind is against faith. An intellectual mind cannot act in faith. If you are an intellectual being, it's very difficult for you to have faith. क्योंकि the intellect is always against faith. Faith के लिए इसको उतारना पड़ता है कई बार. You have to simply stop thinking and just obey what God wants you to do. In your life, dear students, if you want success, if you want God to give you great positions in your life, to give you good jobs, to give you good life partners, I don't know what you want from your God.
He's ready to give you all of them. But he says two things. Know your God. And secondly, do not seek alliance, wrong alliance. Do not seek wrong people in your life who will help you. Consult me, I will tell you. But if you do not consult him and judge in your own thinking, in your own understanding, you will not please God. And then he will say, मैं कहाँ रहा तुम्हारा राजा? He wants to fight for you. He wants to give you victory. He wants to take you to high places. आप उसकी संतान हैं. आप राजा की संतान हैं. आप मानते हैं इस बात को? You are child of a king. Do you know this? नहीं मालूम. सर पता नहीं क्या कह रहे हैं आप. I am a child of a king. We all are child of a king if we believe in Jesus Christ. यीशु मसीह में हम परमेश्वर की संतानें बनते हैं जब हम नया जीवन पाते हैं. Whenever we are born again, we become children of God. As sir was saying, हमें नया जन्म पाने की जरूरत है. The moment we are born again, we become the children of a king. And no king would leave his children as beggars. कोई राजा अपने बच्चों को भिखारियों के समान नहीं छोड़ेगा. He will put them in high places. You want high places? Make him your king. Make him your king. When you will make him your king, he will put you in high places. Two things. Remember always. Know your God and the power of your God. Because the devil will always convince you that your God is not powerful to achieve all of this. Do not listen to the lies of the devil. Know what your God can accomplish. And secondly, do not seek any other help apart from the Lord your God. If he is for you, nothing can stand against you. If he fights for you, who can stop him from winning?